So good morning everyone. Today we are going to start with fourth chapter of 11 Commerce Maths 2. The name of the chapter is Bivariate Frequency Distribution and chi-square statistics. Yes, this is not chi. This is we read it as chi-square statistics. We'll learn about this later. So there are two things: bivariate frequency distribution, and then there is a chi-square statistics also. So let us first understand what is the meaning of this bivariate frequency distribution. Okay. Now there are actually two types of characteristics students. जो हमारे पास डेटाज होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं. We'll start with BFD, bivariate frequency distribution, first lecture. Okay. So I was saying that characteristics are of two types. जो हम सैम्पल्स में कलेक्ट करते हैं डेटा वो टू टाइप्स के होते हैं. Okay. एक होता है वेरिएट, VARIATE, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट. So what is variate and attribute? So the characteristics which we can measure numerically, numerical values possible होता है उसको वेरिएट बोलते हैं. और अगर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिकल, तो उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. अब न्यूमेरिकल मतलब जैसे अगर मैंने बोला x इज एज ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास, तो x क्या होगा? इट विल बी अ नंबर, राइट? 15 years, 16 years, 18 years, 20 years, तो वो वेरिएट हो गया. अगर मैं बोलूँ x इज अ वेट, तो वेट विल बी अ नंबर, सो इट्स अ वेरिएट, राइट? बट अगर मैं बोलूँ एट्रीब्यूट्स में, फॉर एग्जाम्पल जेंडर, अगर x क्या है? जेंडर है. ठीक है, तो जेंडर क्या होगा? तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. यस सर, नो? उसमें कोई नंबर से तो नहीं आएगा ना कि इसका जेंडर 1 है, इसका जेंडर 2 है, इसका जेंडर 3 है. नंबर में नहीं आता. इट्स अ नॉन न्यूमेरिकल, तो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं. कलर ऑफ आईज, हाँ, आईज का कलर कैसा है? तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना 1 कलर है, 2 कलर है. वो बोलेगा ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन है, लाइट ग्रे है, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो the only difference between variance and attribute is that the variate are numerical values, whereas attributes are non-numerical values. Is it clear, everyone? Now in this chapter, bivariate, the name is bivariate. Bi stands for two and variate stands for numerical value. तो जब कभी भी हमको डेटा में x और y दिया होगा, दो इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मे बी x इज अ एज ऑफ अ स्टूडेंट एंड y इज अ वेट ऑफ अ स्टूडेंट. तो दो डेटा जब दिया रहेगा तो हम उसको बोलते हैं बाईवेरिएट. बट वो दो डेटा भी कैसा होना चाहिए? दोनों के दोनों न्यूमेरिकल. ठीक है, उसको बोलते हैं बाईवेरिएट. फिर वर्ड है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब हम सबको मालूम है कि भाई उस एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? सो दैट्स अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्रॉपरली जब हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर डेटा गिवन, उसको ही हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. इट इज वेरी सिंपल चैप्टर स्टूडेंट्स. सो लेट्स गो थ्रू. So let's see what is the meaning of bivariate frequency distribution as per the textbook.
So far our study was restricted to frequency distribution. अभी तक कैसा था, x दिया रहता था बस, है कि नहीं, of a single variable. Such frequency distribution are called univariate frequency distribution, uni for one. We now turn our attention to the study of two variables observed on the same population. उसी population में दो variable, जैसे height and weight, income and expenditure of a group of individuals, marks obtained by a group of students in two different subjects, right? OC में marks, BK में marks, like that, are example of bivariate data, as they involve simultaneously study of two variables. Frequency distribution of two variables is called as bivariate frequency distribution. Have you all understood the meaning of bivariate frequency distribution? Clear to all? Great. Now, after that, we will be studying about the classification and tabulation of bivariate data. How do we classify bivariate data? How do we tabulate them, in a table format? Okay, so here is an example. The given data can be summarized in the form of a two-way table called as bivariate frequency table. For this, the value of each variable are grouped into various classes. Consider the following data, which gives 15 days record of number of ice candies sold and temperature of the day recorded by a shopkeeper. Yes, तो टेम्परेचर x है और उस दिन कितना आइस कैंडी सेल हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो 33, 18, 16 से लेके पूरा नीचे का टेम्परेचर है और उस दिन कितने कैंडीज सेल हुई है वो हमारा सेकेंड वाला रो है. तो दो डेटा दे दिया एक पॉपुलेशन के लिए. लेट अस डिनोट डेली टेम्परेचर इन सेल्सियस बाय एक्स. जो डेली टेम्परेचर है उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, राइट. उसके बाद 10 वी हैव टू वेरिएबल्स और जो नंबर ऑफ आइस कैंडीज है उसको वाई कर लिया. तो वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ऑब्जर्व दैट वेरिएबल एक्स, अगर एक्स वेरिएबल को ऑब्जर्व करोगे तो देखो मिनिमम एक्स 16 है, देखो, एंड मैक्सिमम 34 है. तो इसका मतलब वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज बिटवीन 16 टू 34. सिमिलरली अगर वेरिएबल वाई को देखेंगे हम लोग तो आई फील वेरिएबल वाई का मिनिमम 150 है एंड मैक्सिमम 500 है. सो इसका मतलब उसका रेंज 150 टू 500 है. For a bivariate frequency distribution, we construct a table by taking values of x horizontally on the top and values of y vertically on the left hand side. तो हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं बच्चों, देखो ध्यान से. हॉरिजॉन्टली ऊपर x लिखेंगे, ऐसा एक कॉलम करेंगे, ऊपर का x नीचे का y. अभी x के क्या क्या वैल्यूज थे वो देख लेंगे ना, कि 16 है, 18 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 34 है, उसको अरेंज कर दिया. फिर आइस कैंडीज के क्या क्या वैल्यूज थे पॉसिबल, 150 था, 250 था, 400 था, 500 था, उसको लिख दिया. सबको ये समझा ये टेबल कैसे बना स्टूडेंट्स, ये एक्स और वाई. ओके, अब जैसे टेबल बन गया अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो. नाउ ऑन द फर्स्ट डे the temperature was 16 and the number of ice candies sold was 150. देखो जरा पहले दिन टेम्परेचर कितना था, मतलब यहां पर वो लोग नॉट ऑन द फर्स्ट डे, ये टेबल में बता रहे वो लोग. टेबल का जो ये फर्स्ट बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स का मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर वो डेटा होगा जब टेम्परेचर 16 है और कैंडीज 150 सेल हुए हैं. यहाँ पर वो होगा जब टेम्परेचर 18 है और कैंडीज 150 सेल हुए हैं, एंड सो ऑन. ऐसी बाकी सबका डेटा भी रहेगा, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस अब हम लोग डेटा कैसे इसके अंदर पुट करेंगे. देखो पहला जो डेटा है टेम्परेचर 33 है और कैंडीज 250 है,
तो वो कहाँ पर हम कहाँ का वैल्यू है वो? टेम्परेचर 33, कैंडीज कितना बोला? 250। तो इसका मतलब देखो 33 और 250 वो यहाँ पर आएगा। यस और नो बच्चों? तो यहाँ पर हम कैसे मार्क करेंगे? जैसे हम टैली मार्क देते थे ना 9-10 में, ऐसा 1 लाइन 2 3 4, 4 के बाद 5th को क्रॉस करते थे, तो ऐसा हम यहाँ पर एक 1 मार्क करेंगे 33 to 50। ऐसी फिर सेकेंड डेटा क्या है? सेकेंड है 18 एंड 150। तो 18 टेम्परेचर है, 150 है, तो इसके अंदर एक टैली मार्क आएगा। इस तरीके से हम एक एक करके यहाँ पर टैली मार्क पुट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ये टेबल? जब सब पुट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाजू में जैसे यहाँ पर 1 ही टैली मार्क है तो यहाँ पर कॉर्नर में 1 लिख देंगे, नंबर 2 2 1 1, और दोनों साइड एक्स के भी साइड एक टोटल का कॉलम बनाएंगे, वाई की साइड भी नीचे टोटल का कॉलम बनाएंगे। ये जो टोटल होगा वो वाई का टोटल होगा, वाई के सामने भले आप लिख रहे हो उसको एक्स के अंदर, बट वो टोटल तो इसका देगा ना, तो ये तो वाई का है। और वैसे यहाँ जो टोटल होगा वो एक्स का टोटल देगा। तो देखो 1 + 2 3, 2 + 1 + 1 4, 1 + 1 + 2 4, 3 + 1 4, यहाँ पर 1 + 2 3 4 5 3, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो ये जो आपने टेबल बनाया, इसी टेबल को हम बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस एवरीवन, समझ में आया क्या आप लोगों को? वेरी गुड। तो y का जो टोटल है वो ये वन, ये दोनों y का टोटल हो गया। 150 का टोटल 3, 250 का 4, 400 का 4, 500 का 4, और x का जो टोटल होगा दैट विल बी 16 का 3, 18 का 4, 33 का 5, 34 का 3। ये स्टूडेंट्स ग्रेट। इसमें और भी कुछ हैं, जैसे कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वो देखते हैं जरा। मार्जिनल में बता देता हूँ आपको। ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन आएगा, ऑल्सो फाइंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, जब हमको क्वेश्चन आएगा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो आप क्या करोगे, वाई का कॉलम लिख दोगे, वाई का कॉलम ऐसे लाइन में। देखो वाई का कॉलम क्या है, 150 250 400 500 एंड टोटल, और फिर उसके नीचे एक ही कॉलम लिखोगे फ्रीक्वेंसी, और उसमें क्या लिखोगे, वाई का टोटल वाला कॉलम 3 4 4 4 15। समझ में आया क्या? ये हो गया मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। वैसे ही जब मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोलेगा, तो एक्स का कॉलम लिखेंगे 16 18 33 34 टोटल, और उसका टोटल क्या है, तो नीचे वाला 3 4 5 3 15 हो गया। सबको समझ में आया? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, marginal frequency distribution of y. What you have to do is you have to simply take that x and that y, right? Okay. कंडीशनल है, बट वो मैं सम के साथ बताऊंगा आपको, जब हम लोग सम करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली नाउ। लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम के अंदर हम लोग समझ जाएंगे, उसके अंदर आपका वापस से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 4.1, कम ऑन। Following table gives income, x is income and y is expenditure, right? टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, बट टेबल में कुछ मिसिंग है क्या स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे यस सर, सबका अंदर टोटल भी नहीं लिखा है और यहाँ का भी टोटल और टोटल मिसिंग है, राइट? तो सबसे पहले तो आप टेबल को कंप्लीट करोगे। यस, सो स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, टेबल बनाओ। टेबल में यहाँ पर एक टेबल ऐड करोगे, टोटल
और यहाँ पर एक ऐड करोगे टोटल। इन सब के कॉर्नर पे यहाँ पर इसका टोटल लिखोगे। जैसे ये कितना है 5 + 1 6, इधर टोटल लिखोगे और ऐसा एक लाइन बना दोगे, सब बॉक्स के जैसा हो जाएगा। इसका टोटल यहाँ पर, इसका टोटल यहाँ पर। जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पहले टेबल बना लो। ठीक है, ये हमारा टेबल है। तो मैंने कहाँ कहाँ आपको बोला ऐड करने को। यहाँ पर 6 लिखेंगे कॉर्नर में, पुट अ ब्रैकेट, 6 क्लोज इट, 1 क्लोज, हियर इट इज 4 6 2। यहाँ पर एक टोटल का कॉलम ऐड होगा। Here also one column will be added. और एक नीचे कॉर्नर का ग्रैंड टोटल होगा n। So 6 + 6 7 plus 6 + 6 12 plus 1 13. This is 10 and this is 2. 6 10 9. Please check if you are getting same value, same total at both the columns and rows. Yes, everyone completed the table like this. Okay. After this, let's see what is the question. First question they are asking, marginal frequency distribution of income and expenditure। तो हमको मालूम है इनकम मतलब x है, एक्सपेंडिचर y है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप भूल ना जाओ। इसके लिए आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो हमको दोनों का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखो x, राइट। तो मैंने बताया आपको मार्जिनल कैसे करना होता है। तो हम यहाँ पर इनकम यानी x का कॉलम लिखेंगे और टोटल में उसका टोटल का कॉलम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में इनकम में x क्या क्या है। तो ये x है 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500. We will write that 200 to 300, 300 to 400 and 400 to 500.
ओके, अब नीचे टोटल किसका लिखने का, तो देखो x लिखा आपने, तो x का टोटल नीचे वाला होता है 6, 10, 9, 25। तो यहाँ पर भी एक टोटल ऐड हो जाएगा 6, 10, 9, 25। ये हो गया आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर हमको एक्सपेंसेस का भी लिखना है, तो वो भी नया कॉलम बनाएंगे। नाउ मार्जिनल distribution of expenditure, that is y। उसके लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर का कॉलम लिखेंगे y, और यहाँ पर उसका टोटल लिखेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है, 200, 300, 300 to 400, 400 to 500। सो 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, and then total। अभी इसका कैसे करेंगे, y मतलब ये है y, तो इसका टोटल मतलब ये साइड 13, 10 to 25, 13, 10 to 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। Yes, everyone completed? Very good. Now, the second question. What they are asking? See, conditional frequency distribution ऑफ एक्स। तो देखो कंडीशनल में जब भी ये वर्ड आएगा तो पहले ये देखो कि किसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही बोला कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो बस आगे पढ़ो मत, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा, जो भी कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसने पूछा है। जैसे हमने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाया ना, वैसा। मैं लिखूंगा कंडीशनल frequency distribution of x, ठीक है। और कुछ कंडीशन भी होगा, when y is between 300 to 400, वो भी लिखेंगे। when y is between 300 to 400, ओके। तो मैंने बोला जैसे ये क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका बोला, एक्स का। तो जैसे ही एक्स का बोला ना, तो आपका जो टेबल है ओरिजिनल टेबल, ठीक है, उसी टेबल को बनाएंगे, बट उसमें सबसे पहले एक्स को लिखेंगे। देखो ध्यान से, ऐसा आपका टेबल होता था, इधर एक्स होता था और इधर वाई होता था, वही करेंगे। बट पहले हम एक्स का पूरा कॉलम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका बोला है, एक्स का। तो एक्स का कॉलम क्या क्या था, देखो ओरिजिनल टेबल में 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, वो पूरा लिखेंगे। सो आई विल मेक 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500।
ओके ना, आफ्टर दिस, अब जब y के ऊपर कंडीशन है तो y का कंडीशन क्या है, y इज बिटवीन 300 एंड 400। तो वापस से जाइए ओरिजिनल टेबल में और देखो कि y में 300 टू 400 क्या आता है, तो एक ही आता है ना 300 टू 400 में, तो बस एक ही का कॉलम का मार्क्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? यस एवरीवन। तो हम क्या करेंगे y में, मतलब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसको ना वाई एक्स लिखेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली x। क्यों x? क्योंकि मुझे फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x का, लिखा था कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके नीचे एक दूसरा कॉलम बनाएंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना बच्चों, ये y की फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि y पे कंडीशन है। तो y पे क्या होगा 300 टू 400, मतलब एक ही कॉलम, तो 300 टू 400 वाला जो वैल्यू है वो लिख दो। क्या है यहाँ पर वैल्यू, पहला कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 0 4 6 10 वो लिख दो यहाँ पर। उसका कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू 0 4 6 10, ये हो गया कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज बिटवीन 300 टू 400। सबको समझ में आया? यस, क्वेश्चन में लिखा है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो एक्स बोला तो एक्स का पूरा कॉलम लिखने का, फ्रीक्वेंसी में वो वाई का कॉलम आएगा, तो वाई का जो रेंज दिया रहेगा उस रेंज का आंसर लिखने का, सिंपल। ओके अच्छा, अभी सपोज मैंने ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया और मैंने बोला आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स ही है, बट मैं बोलूँ वाई इज बिटवीन 200 टू 400, यहाँ पर है 300 टू 400, अब मैं बोल रहा हूँ 200 टू 400, तो चेंजेस क्या होगा ध्यान से देखो, x बोला है तो x पहले लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, बट अब y के ऊपर है 200 टू 400, तो मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा और क्वेश्चन में देखूंगा 200 टू 400 के लिए, तो आप बोलोगे सर ये दोनों आना चाहिए फिर तो, यस और नो, क्योंकि ये दोनों है 200 टू 400 के बीच में, तो लेकिन उधर तो आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो क्या करने का, इसका टोटल लिखने का, मतलब 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 6 7, यानी 6 10 7 23, 6 10 7 23 कहाँ लिखेंगे, तो लास्ट के फ्रीक्वेंसी के अंदर, अगर 200 टू 400 बोला जाता तो। समझ में आया सबको? उन दोनों को क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि रेंज 200 टू 400 आ गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ओके, देखो और एक हाथ क्वेश्चन देखेंगे ना तो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सेकंड हो गया, नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज दिस, तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, टेबल का हेडिंग लिखो, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी distribution of y when x is between 200 to 300।
नाउ टेल मी बच्चों, अभी मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, एक्स का कि वाई का? ये शुभम सबका ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बताओ मुझे किसका निकालना है यहाँ पर कंडीशनल फ्रीक्वेंसी, एक्स का कि वाई का? वाई का। तो जैसे ही वाई का निकालना है तो वाई लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, वाई का पूरा कॉलम कॉपी करेंगे। तो वाई का कॉलम देखो क्वेश्चन में क्या है, 200 टू 300, 300 टू 400। अब यहाँ पर देखो सेम है एक्स और वाई का, बट बहुत सारी जगह क्वेश्चन में वो डिफरेंस भी हो सकता है, एक्स का कॉलम अलग हो सकता है, वैल्यूज अलग हो सकता है, और वाई का अलग हो सकता है। तो पहले मैंने वाई लिख दिया, लास्ट में टोटल भी लिख दिया, ठीक है। अभी एक्स के ऊपर कंडीशन क्या है, 200 टू 300। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स पे कंडीशन है 200 टू 300, तो बस यही वाला कॉलम आएगा। क्या है कॉलम में, 6006। तो बस वही लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में, 6006। हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? ये दोनों कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो जल्दी से, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी सब लिखो। मार्जिनल तो लिखा रहेगा आपने, ये दोनों लिख लो। Yes? Okay. Now, next question. Fourth. You think and tell me the answer. Fourth one. खुद रीड करो और मुझे बताओ फोर्थ का आंसर क्या हो सकता है। Read the question fourth and tell me the answer. How many families have their income rupees 300 and more? Income 300 and more है and expenses 400 and less है। ऐसे कितने फैमिलीज हैं?
तो आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों पे कंडीशन है। इनकम बोला 300 एंड मोर और एक्सपेंसेस बोला 400 एंड लेस। तो हमारा जो कॉलम है उसके हिसाब से हमको पूरा टेबल बनाना है। ठीक है, कैसे? अभी देखो, इनकम का मतलब होता है एक्स, बोला 300 एंड मोर, तो इसका मतलब एक्स में 300 एंड मोर मतलब 300 टू 400 आएगा, 400 टू 500 आएगा, बस ये दो कॉलम आएंगे, ये कॉलम निकल जाएगा। फिर वाई क्या बोला? 400 एंड लेस, 400 या उससे लेस मतलब 200 टू 300 आएगा वाई में, और 300 टू 400 आएगा वाई में। ये वाला नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस। सो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, कैसे करेंगे देखो। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। 300 एंड मोर बोला था तो 300 टू 400 आएगा, 400 टू 500 आएगा, एंड टोटल एक्सपेंसेस को बोला है 400 से लेस, तो 400 से लेस मतलब 200 टू 300 आएगा, एंड 300 टू 400 आएगा। 400 टू 500 नहीं आएगा क्योंकि वो 400 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आया सबको? अब इसकी जो जो वैल्यूज है टेबल से वो लिख लो नंबर में। तो देखो यहाँ पर क्या है वैल्यूज, ये वाला कॉलम नहीं है तो 6 4 0 10 1 6 2 9 ऐसा हो जाएगा ना। बट उसमें से भी हमको मालूम है कि ये वाला कॉलम नहीं लिखना है, यानी 6 1 4 6। समझ में आ रहा है सबको? यही चार एलिमेंट आएगा ना। यस, 6 4 1 6। हाँ, वो टेबल सामने रख के रखोगे ना तो आप आराम से लिख पाओगे स्टूडेंट्स। मैं क्या आपको ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ ना, इसके लिए आप सामने टेबल रखो और देखो ना वैल्यूज कौन कौन से हैं। तो इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 6 है, आप टोटल लिख दो। ये 10 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 10 है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आया वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो देर आर 17 फैमिलीज। फाइनल आंसर, देर आर 17 families with income rupees 300 and more, and expenses rupees 400 and less. So this will be your final answer. My audio is clear to all students? Okay. So those who are not finding it clear, then that must be your internet issue. That is why you may not be able to hear me properly, because in my area the range is quite okay. Please complete this table, and that's all in the first problem. And let me know if it is completed, students. Okay, done.
Now we'll move ahead to the question number 2 now. Yes, question number 2. See, what is the question? Two dice are thrown simultaneously. Okay, 25 times. टू डाइस को 25 टाइम्स टॉस किया, थ्रो किया. द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एट ऑप्टेन. लाइक पहली बार दोनों को किया तो फर्स्ट डाइस में 2 आया, सेकेंड में 3 आया, सेकेंड टाइम किया तो 2 5 आया. ऐसे टोटल 25 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिए हुए. प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा. ऑल्सो ऑप्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले तो बाइवेरिएट टेबल बनाना पड़ेगा, राइट? तो मुझे बताओ बच्चों, इसका बाइवेरिएट टेबल कैसे बनाएंगे? तो x चाहिए, y चाहिए. तो x क्या होगा? x क्या होगा? यस, ऑब्जर्वेशन ऑन द फर्स्ट डाई. y क्या होगा? ऑब्जर्वेशन ऑन द सेकेंड डाई. तो कैन यू टेल मी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x क्या क्या वैल्यू हो सकता है और y क्या क्या वैल्यू हो सकता है? चलो बताओ. देखो x क्या क्या वैल्यू वैल्यू क्या क्या है, y के क्या 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 पॉसिबल वैल्यूज है वो चेक करो. आप बिना चेक किए भी बता सकते हो कि मैंने अगर डाइस को थ्रो किया तो क्या हो सकता है. यस, व्हाट प्रजेश आर यू सेइंग टू? इफ आई थ्रो अ डाइस, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक? यस, 1 2 3 4 5 6. And y also, what it can take? Same, 1 2 3 4 5 6. These are the only possibilities which they can take. फिर हम वन वन करके, अभी 2 3 है तो x में 2 देखेंगे, y में 3, उधर टैली मार्क डालेंगे. समझ में आ रहा है क्या? यस. तो चलो इसका स्टार्ट करो, सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन. मैं केवल आपको बस फॉर्मेट देता हूँ, आप स्टार्ट करो. सो आई जस्ट एज्यूम फर्स्ट लेट x इज ऑब्जर्वेशन on first die and y is observation on second die. आप चेक करोगे x का रेंज, y का रेंज, तो 1 to 6 आपको आएगा. देयरफॉर बाइवेरिएट, हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बाइवेरिएट frequency distribution. Same way we will make the table. Here we write x, here we write y. x का पॉसिबल वैल्यूज, y का पॉसिबल वैल्यूज, राइट? तो वो पूरा कॉलम बनाएंगे हम. सो 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल. आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में तो एटलीस्ट एक एक लाइन छोड़ के भी बनाओगे तो भी चलेगा, डबल लाइन का. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 and then total.
Okay, so the possible values of x we will write 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. Okay, now you will start putting the tally marks. तो पहला डेटा क्या है, वो डेटा देखो, टेक्स्ट बुक में सामने रखो। ठीक है, मैं भी सामने रखता हूँ टेक्स्ट बुक, एंड स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। पहले आप करो, फिर मैं करूँगा। स्टार्ट डूइंग इट, पुट द टैली मार्क एंड देन टोटल, सब करो फटाफट जल्दी। लेट मी नो इफ इट इज कंप्लीटेड। टेबल अगर आपका कंप्लीट होगा तो बताओ मुझे। यस, please check it. I'm just putting the tally mark here.
So it's 1 here, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 5, 3, 1. So total यहाँ भी 1 है, so it's 4, 3, 6, 3, 9, 0. So it's 0, 7, 5, 8, 3, 2. So I think from both sides the total is 25. एक एक करके आपको टैली में पुट करना है and then get the answer. इसके बाद मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई लिखना है. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स में एक्स ये होगा और टोटल का कॉलम ये. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई में ये वाई होगा और ये उसका टोटल. दैट्स ऑल. प्लीज कंप्लीट.
ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? ओके, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, वो भी लिखना है आपको। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा, एक्स लिखा और डायरेक्ट लास्ट का टोटल 075832225। और वैसे ही जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, उसमें वाई कॉलम लिखा रहेगा और फिर ये वाला टोटल आएगा, राइट? ओके, सो आई अज्यूम दैट यू हैव डन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर टेबल और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉलोइंग डेटा गिव्स एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। एक्स इज एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, कंस्ट्रक्ट a bivariate frequency distribution table and find the marginal distribution। यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन। बाद में कुछ कंडीशन बोला है, तो वो बाद में देखते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपको इसका बाइवेरिएट बनाना है। यस, कैन यू मैनेज दिस क्वेश्चन? कर सकते हैं क्या आप लोग? तो आप एक्स देखोगे कि एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो देखो एक्स का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, रेंज क्या है, देखो। तो आई थिंक एक्स 25 इज द मिनिमम, 28 आ रहा है, 29 भी है। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 25, 26, 27, 28, 29। और वाई देख लो, वाई का मिनिमम क्या है? मिनिमम इज 19, तो 19, 20, 21, 22, 23 एंड आई थिंक 23 इज द लास्ट। हाँ, तो वो वाई मिल गया। तो फिर एक्स, फिर वाई, फिर इसके वैल्यू के देखो, ये टेबल कंटिन्यू है, इधर जगह नहीं है, इसके लिए नीचे लिखा है। ये डेटा कंटिन्यू है, वो टेबल बन जाएगा। टेबल बन जाएगा तो फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे पहले सब लोग। स्टार्ट डूइंग इट।
You have textbooks with you, you can use those textbooks. I'll use now Excel sheet because उसमें अच्छे से टेबल भी दिखेगा आपको. So it's question number 3. So first you will put a heading, na? Bivariate frequency distribution. Okay. Then नीचे y होगा और ऊपर x होगा. x का वैल्यूज आपने मिनिमम कितना था वो आप लिख लो. 25 से 29 है. 25, 26, 27, 28, 29. And y is 19, 20, 21, 22, 23. We will have one column total here and here. So this is our complete bivariate frequency distribution table. Okay. Now we will start the tally mark. So first one is 27, 21. So 27 में 21, right? So here one line. 25, 20. 25, 20. 28, 20. 28, 20. 26, 21. 26, 21. ऐसा एक एक करके डालना है. 29, 23. 29, 23. Then 27, 22. 27, 22. 28, 20. So already एक था वहाँ पर और एक आ जाएगा. Then 26, 20. 26, 20. 25, 19. 25, 19. 27, 23. 27, 23. 26, 19. 26, 19. 29, 23. So 25, 23. 27, 22. 26, 21. Then 25, 20. 28, 22. 25, 23. And 27, 22. Please verify whether you get the same like this. इसमें नहीं आया, that's just a dash. Okay, so here it's 1. यहाँ पर मैं कॉर्नर में नहीं लिख पाऊंगा एक्सेल में, इसके लिए ऐसा लिख रहा हूँ. It's 2. Source. चेक कर लो कहीं अगर मैंने मिस्टेक किया होगा तो.
x25 y19 is 2, x25 y19 ये 2 है क्या? 25 19, let me check, 25 19, यस, हाँ वहाँ पर 2 बार था, मैंने उसको एक ही बार रीड किया। चलो एक बार टोटल कर लेने का और चेक भी कर लेने का ना कि टोटल जितना डेटा दिया है उतना है कि नहीं। इसका टोटल कर लेंगे हम। सो दिस इज 3 5 3 4 5। Okay. Here the total will be 6 4 4 3 2, 6 plus 4 10, 4 3, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। 26 एंड 21 भी 3 है क्या? स्टूडेंट ज़रा चेक करो, 26 21 में 3 है, तो फिर कहीं तो कुछ कम होगा फिर, क्योंकि फिर ये तो एक इंक्रीज हो जाएगा ना, राइट? हियर आई मे इंट्रोड्यूस 3 हियर, बट देन देखो कहीं तो फिर कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा। वैल्यूज चेक करो, 25 का टोटल, 25 का टोटल तो राइट है ना, 6222। 27 का टोटल 3 + 2 5, यस। इधर कुछ तो इन कम ज़्यादा होगा, कुछ तो चेक करो डेटा। यहाँ पर 4 होते हैं, नहीं बराबर है, 21 डेटा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 है कि 21 है डेटा? काउंट करो जरा बच्चों। ओके, अब ये टेबल परफेक्ट है, 21 टोटल है। नो मेरा टेक्स्ट बुक में 21 डेटा दिया है, तो आई थिंक मेरे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, इसके लिए मेरा रॉन्ग है। इन माई टेक्स्ट बुक ओनली 20 डेटाज आर गिवन। You please check in your textbook, you have 21 na? Okay, now after this we find out the marginal frequency distribution. So write down marginal frequency distribution of x. So marginal frequency distribution कैसे लिखते हैं हम लोग? x लिखते हैं
और यहाँ पर टोटल लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उधर टोटल लिखते हैं। सो एक्स का पूरा वैल्यूज लिख दो 25, 26, 27, 28, 29 एंड टोटल। और सीधे उसके नीचे वाला देखो, ये एक्स था, इसके नीचे वाला 6, 5, 5, 3, 2, 21. This is marginal frequency distribution. Okay, understood everyone? Similarly, we will find marginal frequency distribution of y. ठीक है, उसमें y का पहले कॉलम लिखेंगे, सेम टेबल होगा, ऐसा ही कुछ बनाएंगे, बट वैल्यूज हम निकाल देंगे इसके। यहाँ पर y होगा, यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी होगा। अब y के कॉलम्स क्या क्या है, तो 19, सॉरी 20, 21, 22, 23 एंड टोटल। फिर उसका टोटल यहाँ पर होगा, ये वाला। सो दैट्स 3, 5, 4, 4, 5, 21, 3, 5, 5, 4 है, ओके। ये हो गया मार्जिनल। मार्जिनल के बाद क्वेश्चन में देखो कुछ पूछा है कंडीशनल ऑल्सो। So let me just write down the first statement of that conditional. So conditional frequency distribution of age of husband. Age of husband means X. Okay. When the age of wife, that is Y, is 23. तो मैंने बताया था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका बोला है, पहले एक्स का। तो पहले आप एक्स का कॉलम बना दो, ठीक है। तो 25, 26, 27, 28, 29 एंड टोटल, और फिर इधर फ्रीक्वेंसी। राइट, अभी कंडीशन क्या बोला है, एज ऑफ वाइफ, व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 23। तो वाइफ मतलब वाई, वाई में एज में देख लो 23 का भी है, 23 का तो कॉलम एक ही है ना, ये वाला। तो बस उसी का वैल्यू लिखेंगे 20102। यस, 20102 and the total is 5. Yes, this is done. Everyone understood? समझा सबको? Fine. Let us see the next question now. Next question, fifth one. Following data, all of you, let's start with fifth one now. Question number 5. Okay. Read the textbook. Following data gives height in centimeter, weight in kilogram of 20 boys. Prepare a bivariate frequency table taking class this for x, that for y, marginal, conditional, सब दिया हुआ है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये तो हाँ, रेंज दिया हुआ है इसमें। Yes, fourth will be homework, students.
दैट्स वेरी सिंपल. रेंज लेना है, वही फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है. आई एम डूइंग फिफ्थ, थोड़ा अलग है, तो हो जाएगा. ठीक है. सो पहले तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन में टेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बट वी हैव टू मेक इट राइट. तो बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो देन कॉलम में y, रो में x. देखो टेक्स्ट बुक में x का रेंज दिया हुआ है स्टूडेंट. देखो क्या बोला है, 150 से 154, फिर 155 से 159. ठीक है. तो 4 का डिफरेंस है, तो 160 से 164. कब तक जाएंगे वो देखने का कि x में मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो नीचे जो डेटा दिया है ना, उसमें x का वैल्यू देखो 152, 154 पहला x का वैल्यू है. उसमें देख लो ना मैक्सिमम क्या है. मुझे 160 दिख रहा, 166 भी दिख रहा है. तो 166 है, मतलब मुझे और एक कॉलम बनाना पड़ेगा. यस एवरीवन, 169 तक बनाना पड़ेगा x. डू यू ऑल एग्री? x का रेंज देख लो कहाँ तक है. 166 आई कैन सी द बिगेस्ट वैल्यू, तो 169 तक आएगा. y का देखो, y बोला है स्टार्ट करने को 35 से, 35 से 39, देन 40 से 44. ये कब तक जाएगा. तो y देखो मुझे 54 दिख रहा है, 54 ही सबसे मैक्सिमम है क्या, देखो जरा y. तो फिर 44 के बाद 45 से 49 होगा, फिर 50 से 54 होगा, बस इतना ही. राइट. देन टोटल हियर ऑल्सो एंड टोटल हियर ऑल्सो. ये हमने हेडिंग्स फाइनल कर लिया है. ओके. नाउ टैली मार्क वन बाय वन. फर्स्ट वैल्यू 152, 40, 40. तो 152 किस में आएगा, 150 वाले में आएगा. रेंज अब देखना है ना, 152 इसमें आएगा और 40 किस में आएगा, 42, 44 में. तो यहाँ पर टैली मार्क. यस एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या. वैसे ही स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट 160 फिर 54, 160 इसमें 54 इसमें. स्टार्ट करो. आप खुद से करोगे तो आएगा, मेरा देखोगे तो नहीं आएगा. 163, 52, 163 इसी में आएगा एंड 52 विल कम हियर ओनली. ओके. 150, 35, 150, 35, 154, 36, 154, 36, 160, 49, 160 and 49, 166, 54, 166 and 54 here, 157, 38, 157, 38, 159, 43, 159, 43 done. 153, 48, 153, 48, 152, 41, 152, 41, 158, 51. So 158, 51 here. 155, 44, 155, 44, 156, 47, 156, 47, 156, 43, 156, 43, 166, 53, 66 में 53, 60, 160, 50, 160 and 50, 151, 39, 151, 39, 153, 50 and 158, 46, 158, 46. Please all of you check all the values of mine.
सब लोग आपको भी यही आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है? चलो अब इसका टोटल लिख देते हैं हम लोग सबका कॉर्नर्स पे. दिस इज 3. ठीक है, सो 3 जहाँ पर है वहाँ पर 3 लिख देते हैं. Then here we have 1. So you write down that corner में 1 1. Okay. And now 2. Now the total will be 3 plus 1 4, 2 plus 3 5. This is 4, and 3 plus 2 5 6 7. Right? This side it is 5 plus 2 7, 7 4 2. So total is 20. So it's done. Bivariate frequency distribution is done. Now marginal frequency distribution दोनों का निकालना है, x का and y का. So next, marginal frequency distribution of x. Right? Marginal frequency distribution of x. उसके लिए यहाँ पर x लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, फिर x का पूरा जो ये रेंज है वो वहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसका टोटल, x का टोटल नीचे है तो ये वाला टोटल यहाँ पर आ जाएगा. तो हो गया ये. Hello students, am I audible to all? Am I audible to all? Please reply. So Jagruti, maybe your internet is not strong, that's why you may be finding it difficult. Okay, from my side there is no problem. Okay, so this is marginal distribution of x. Similarly, we will go for marginal distribution of y. तो सेम होगा, बस वैल्यूज यहाँ पर y आएगा. y के कॉलम से 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, and the total frequencies. अब y का टोटल ये वाला आएगा 4 5 4 7 20. This is your marginal frequency distribution x and y. Okay, everyone understood this much? Okay, then they are asking conditional frequency distribution. So the next is conditional frequency distribution of y बोला है when range दिया है कुछ तो 155 less than or equal to. Okay, they have used a symbol here. Y when
155 less than equal to x, then less than equal to 159. So ये क्वेश्चन है आपका। तो पहला तो देखो कि मार्जिनली कंडीशनल, कंडीशनल यस। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका बोला है, y का। तो पहले y लिख दो और y के कॉलम्स को एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो y का कॉलम हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी वही लिखेंगे जिसमें x का रेंज 155 और 159 वाला हो। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, x का रेंज 150 से 159 मतलब ये वाला कॉलम हुआ ना बच्चों, y तो पूरा लिखा है, ये वाला कॉलम 1 3 2 1, कम ऑन। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 3 2 1, दैट इज 7। तो ये इसका कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड? यस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से बच्चों सबको? ओके, so here we have completed the first exercise of bivariate frequency distribution. Clear? Okay, only one question I have left for you all to do homework, so you have to practice that, solve that and get the answer of that particular question. Yes? Fine. Now the second exercise will not start it today, we will start it in the next class. So that's all for today, students. We'll continue the second exercise in the next class. Thank you very much. Bye bye.